of 99 runs posted by Kucherem champions in their first outing, and they won it quite comprehensively by 43 runs. But in the second game, once again it was the side chasing. It was Kukolim United who chased comprehensively through Yuvraj, who looked at his best today, as he always normally plays for his Panchayat Municipality, and begging the player of the match from our esteemed guest. And now it is these two batters who are coming out in the middle. 12th man is compulsorily required. Lakshan Dorat, विराज तसोच सिद्धेश भगत बाब तुमका विनंती करता तुमच्या जे मॅनेजर आसात नाल्यार तुमचे जे टीमीक आसा सांगून दवरात 12th मॅन हांगा पाविल्लो आसा वालपय टायगर्स पाविल्लो आसा तर नावेलीम रॉयल्स तुमचो 12th मॅन येवपाक जाय नाजाल्यार तुमचे रन्स जे आसा ते डिडक्ट करतले प्लीज लक्षात दवरात कित्याक स्कोरिंग जे आसा ते कंटिन्युअस ऑनलायन फास्ट चलता आणि त्या खातीर आमकां अपडेट्स कंटिन्युअस जाय कॉमेंटेटराक स्कोरराक ते जर तर आमच्या मदीं पावना जाल्यार आमी तुमच्या मदीं ते हाडपाक शकपाना मॅच स्टॉप जातली आणि मॅच स्टॉप जाली जाल्यार तुमकां पेनल्टी पडटली So Nitesh Kamli and Suraj Gowde. We'll talk about both these opening batters. Well, those who have not followed Goan cricket, those who are from other states, these are the two stalwarts, these are two stars. I can certainly call them Nitesh as well as Suraj Gowde, popularly known as Babu. They have been playing in their pad name teams. Pad name team is considered, or pad name area is considered to be the one of the strongest in terms of getting so many players in Goan cricket circles. As far as entire taluka is concerned, they are just super power, super house in producing great talents, and one of those two talents are witnessed here as opening pair. Walpoy Tigers have taken both of them because everyone wants a combination who know each other very well. They gel well with each other as far as the batting is concerned, running between the wickets is concerned, and also about coming in bowling. So here are both the batters. Bowling opted by Sahil Arolkar, and here is going to be the first ball for Navelim Royals. Oh, what a shot! What a shot! Awesome beginning, up and over, and a classic off drive for a lovely boundary. Thank you, Kombok. I am honored to meet and greet a Russian couple, Dmitry and his wife, all the way from Russia. And from Russia with love, the country that belongs to Mr. Vladimir Putin, and they have been a great job. India, Russia are very great. How are you feeling this atmosphere? You have come to India and especially to Goa. How are you enjoying the hospitality of Goan people? I like Indian people. For Indian people, it's best people in all ASEAN. Indian place is best. I like Indian people for slow Indian people, no going, but all European people. I like Indian. Every year we come back with my wife in India and live this for half year. Every year. I love Indian. It's best. And this is a game of cricket. Have you heard about cricket? Have you seen cricket matches like this before? Or this you have witnessed such a grand gala show in the game of cricket? I know play cricket, but in my country it's not popular. In my country popular is football, volleyball, basketball, maybe hockey. But we like Indian cricket, Indian team. Oh, that's great. That's such a big compliment for Indian cricket team. And you have come here today to witness the first ball match. Yeah. Which is your favorite club? FK Goa. Oh, that's great. So Go Goa is the theme, and you have come here. Hope you will enjoy the hospitality and wishing you good luck. May India and Russia become friends forever and make progress together. Thank you so much. Thank you. Let's go back to the combox. Thank you. Thank you, sir. And that itself is a success. People have come from Russia, especially to see Damba Premier League. Russians, although not playing that cricket, but they love the game of cricket, and they will definitely be here for a long time to just enjoy the tennis ball cricket.
in progress, flicked away on the leg side for a couple of runs. Will be looking, no, just fielder converging nicely, stopping the batter for just a single. Well, this has been a good start for Walpoi Tigers. The kind of a start they have received from the batsman Nitesh is quite terrific. The way you give a start to your team, it is a kind of a momentum you carry throughout the innings, isn't it, Harish? Nicely driven into the gap. Never wanted to hit it hard, just opening the face of the bat, and that's the sign of matured cricketers they are turning out to be. Once you play so much of cricket, be in the different positions and different franchises as well as different opportunities you get at different positions in batting, you try to learn this game and try to just introspect what is the situation in hand, what is the demand, and accordingly supply what is the need for the franchise owners. Absolutely spot on. A sensible cricketer is someone who can analyze the conditions of the game. This time it was a full toss delivery, wanted to go for a biggie but couldn't time it well. A dot ball to end the over. After the completion of first, it's 10 for none. So it's 10 for none, and we'll definitely have a lot of spot prizes for the spectators, the crowd that are coming in. So far we have seen just 10 runs on the board, but there is a long way to go. We Thank certainly you so see much. Yeah, well, ladies and gentlemen, I have got a Walpoi Tigers tiger, Mr. Viraj with me. Viraj bhai, how are you enjoying this Damba Premier League and the way your team has scored 10 runs in the first over? Since the of this tournament opening, we have been waiting for this moment, and now our team is totally confident enough that we have scored 10 runs, and 10 is nothing. We are expecting at least 80 runs of this inning. That's great. And any particular batter on whom you feel that he can do the job for you? I have couple of batsmen. I don't name them right now. All are my batsmen. All are all-rounders and all are full form. Great. So we'll talk to you later, and let's go back to the com box. Well, thank you, Harishji. Game number 3 for the day 2 of Damba Premier League 2025. An extraordinary, a flamboyant event which has been organized here in the heart of Goa at Fatehpur Maidan. Beautiful delivery this time. Took the pace off completely. Well, this is the variations that you need to carry in a shorter format of game, Harish. Yes, and not always about wickets as well. You need to bowl at a line that you can contain, and it should be unpredictable in a 6 overs game. That is what the bowler should bring in, that extra thinking that needs in just a shorter format. And Anand Patil is someone who has played a lot of cricket, especially coming from the region of Uzgaon. Actually, Uzgaon falls somewhere in Walpoi constituency, but he's playing for the opposite team, Navilim Royals, because one of the finest all-rounders, one of the best fielders as well, as a bowler, as a performer, as a batter, got a lot of credentials and a lot of good record. That is the big reason where Navilim Royals picked him in the squad. Well, purely impressed the kind of a batting temperament these two are carrying at the moment, Nitesh and Suraj. Not going for any risky shots, picking up the boundaries as well in the meantime, also rotating the strike, which is a sign of a sensible cricketer. This time a beautiful piece of bowling work, followed the batsman outside the off stump, beaten up, no run conceded. Well, the kind of a platform has been set by the organizers here for the Goan cricketers is purely fantabulous, because you need local talents to shine. Ah, what a lovely shot. There's a man in the deep. What a catch. What a lovely catch. You have taken Suraj Gavde, the skipper of Walpoi Tigers, through a spectacular fielding effort. He had to see the rope behind. He had to see it and gauge it. It was flat.
the balance as well, want to keep it on the field of play, everything done perfectly, and this is going to be one of the best catches that we have witnessed, and that's the reason why everyone is just coming and congratulating a brilliant fielding effort. Once you get Suraj Gowde, it's almost 30% of the job done by Anand Patil and the fielders of Navelim Royals. Yes, definitely wasn't an easy one to judge that. He kept his nerves calm and composed, kept his eyes on the ball, and a pure timing of jump got him this wicket. Exactly the kind of a start the captain was expecting from this bowler. So Anand Patil striking. And that is favorite shot of Bauer. He just swivels and almost on one knee, bending down, gets many shots on both sides of the square of the wicket. But Anand Patil certainly has placed a man over there just for that shot. So very good captaincy, because Sahil Arolkar also comes from the Pan Am region. They know many things about these players. Appeal there, and here comes Munna. And Munna is the big guy, and always backs a punch. A lot of power definitely there. We have seen David Boone, we have seen Inzamam ul Haq, the big guys playing for Australia as well as for the Pakistan, but they have loads of runs. This time a full length delivery, just driven into the extra cover region for a quick single. He's off the mark with that single. Yes, you rightly mentioned, he's someone who truly believes in his power hittings. Not a classical player, but indeed he has that some good hitting power that can easily dispatch any ball, any in the radar will be sailing over the fence. With that single, 2 runs of that over. So economical from Anand. After the completion of 2, score moves on to 12 for the loss of 1 wicket. Thank you so much. Got Siddesh Bhagat, proud owner of Team Nevelim. Welcome to the interview session. पहला ओवर में 10 रन, दूसरे ओवर केवल 2 रन, वो जो कैच लिया गया. Now that really shows the power of Royals. They play royal cricket. They play loyal cricket. Your thoughts? My team is both royal and loyal. So we are the combination of royal and loyal. So we can see that on the ground. And they play more as a family than as a team. So they know what they are doing. And it is a proud moment to have Dambab Cup in a place where Dambab comes from. क्या बात है. Such a strong tie with the name Dambab. Let's go ahead and hear it from Harish Kakodkar and Awesome Hussain. Well, Dambab is the faith of lakhs of people of Goa. As in the air, very nicely bowled. He comes from the Margam region. Varad Dabholkar as a leggy. Very good bowler as far as the leg spin is concerned. Tosses the ball up, not afraid. He always look to pick up wicket. Works in Goa Police, but he is a cricketer which has been highly rated as far as the bowling is concerned. And you see the desperation that was there on Sahil Arolkar, the captain of Navelim Royals, to pick him in the side. Because when you talk about the leggies, they bring in a variation, they bring in change of pace. I mean, not many of the batters are used to playing against the spin. Still very cautious approach from Nitesh Kamble, very sensible. You feel that in tennis ball cricket, you always need to hurry, hustle, gustle. But here you see the calmness on the face of the batters. You feel that are they thinking about a target of 55 or 60 and we are going to defend it. But they are going to explode at some point of time for sure. Exactly. Over the period of time we have seen the tennis cricket has gone for a long run, this time high up in the sky. Fielder coming underneath. The bowler himself takes the catch and the second wicket for Navelim Royals. They have done a great job here. They've sent the batsmen in the back foot with the kind of over we have seen from Anand. Just 2 runs of it, and that is the pressure carried in the third over as well.
and the batsman wanted to pull it over and couldn't get enough willow on that one and throws his wicket away. Well, that was, thank you, Combox. We have Mr. Siddesh Bhagat with us, ex-Sarpanch. Siddesh, any particular score that you have in your mind looking at the two brilliant catches taken by your fielders? There's any... I have faith and confidence in my players. So let the target come, we will achieve it. Kya baat hai? You got to believe it to achieve it. These are the inspiring words from Mr. Siddesh Bhagat. Let's go back to Combox. If the confidence of the owner is so high, then why not the players will deliver that? well, he's always confident in life. Siddesh, oh, what a shot. Finally, smoked it out of the park. Picked the right length, walked across, and it is Kane has shown that he has arrived on the crease. Yes, he has announced his arrival in some style with that biggie. They still need a few of these in order to control the damage they have received of 2 wickets. Missed up on his run-up. Well, he didn't miss up. He saw the intent from the batter shuffling across, and he knew that he was going to vacuum once again in the same region. So it is better here that backing off is better instead of conceding into the plan of the batter. That's nicely bowled, slowing it down. That's much better. Always the spinners need to slow it down because then the power has to come from the bat. When you're providing the pace, it becomes much easy. The length is a crucial aspect for the spinner, and also need to track what is happening in the mind of the batter, whether he's going to walk across, he's going to charge towards, step outside. All these things are going in the mind, especially of the spinners. And that is why Wadar Daborkar comes as a special bowler with a wonderful googly as well. Yes, you rightly mentioned, Harish. We have seen over the time of period, the tennis cricket has evolved a lot. If you are going to continue with one pace with extra pace kind of and variations, it is not going to work for you. You have to have those variations with you, back of the hand, wide yorkers, fuller length deliveries, which is why you can play with the mindset of the batsman. We are done with the over. After the completion of 3 overs, score moves on to 22 for the loss of 2 wickets. So Walper Tigers have got 22. They've lost 2 wickets. 3 more overs to go. A little bit tense, I'm sure. They must have seen how the entire tournament has progressed. But 3 overs, you can just change the course of the game on its head. You can get even 50-55 in those 3 overs, having seen Kane, Harshad Matondkar as well as Nitesh is playing on the wicket. And both are devastating exponent, especially at the fag end of the innings. And if you have seen the records, the record book says if they last for the next 3, I am certainly going to see a 75 plus total here on the board for Walper Tigers. Nitesh Kamble has still not cut loose here. Still watchful, and that's how he plays. He wants to see what the wicket is on offer, respects the good balls, and now I think this is going to be a big over that is going to be challenged by the batters. They are going to take on Anand Patil. This is the feeling, this is the sniff that I am going to get here from the commentary box. Anand Patil having bowled a lovely over the previous one. The second one just conceded 2 runs. So captain is backing his all-rounder. They're straight over the top. Has he timed the ball? Has he middled the ball? It's sailing over and it has gone over the top. We have to wait for the umpire signal. Looks to be a boundary. Just short. Well, the holding has gone down and someone is a little bit tense there looking at the holding. Hope not much damage done. Next game. So this is a good start here in the
power play over. This is what is expected. I expected to cut loose here both the batters. In fact, now it is both the ends. The score is not much, just 26. One good over of around 20-25 runs is going to set them back on track. Bicholim Blasters, Kalangur Giants, you are requested to report immediately. Captains, you need to come with your kits. Please note about that. Only the captains. The next game, Kalangur Giants and Bicholim Blasters. Report immediately, especially the captains. You need to come for the toss along with your kit. 27 रन बोर्ड पर लग चुके हैं. अभी तक एक सूझबूझ वाली पारी जरूर देखने को मिलती हुई वहां नीतीश कांबले द्वारा, और साथ उनका देते हुए हर्षद मातोंकर. छोटी गेंद वहां पर थोड़ी सी गति को खींचा था, लेकिन दिशा दिखाने में कामयाब हुए. फील्डर वहां पर बने रह जाएंगे. दर्शक, वन बाउंस ओवर द बाउंड्री रोप. एक और चौका मिल जाएगा इस ओवर में. उंगलियों को फेरा जरूर था, लेकिन जब आप वेरिएशन करते हैं हरीश, तो आपको लाजिम जरूरी होता है कि आप पिचिंग सही करें वहां पर, ताकि आप बैट्समैन को चकमा दे सके. वहां यहां पर फुल टॉस मिली, उसको बाउंड्री लाइन के पार भेजा बल्लेबाज ने. And that's his favorite shot. Nowadays, almost all the tennis ball cricketers just walk across and try to put in the open spaces towards the backward square leg, fine leg region. And that's why the length and line is going to be imperative here for any bowler. This is a good start in the first 3 balls. 9 runs have been taken off. Still we are searching for the 6 from Valpur Tigers. They are trying hard, but it's definitely the wind also will be looked after. Hi, this is a chance here. Fielder underneath. That's taken easily. That's the end of Arshad Matondkar Kane. Well, he has shuffled across, and the bowler also followed him outside the line. Could not get off the meat. Went high, and the catches have not been dropped by Naveli Royals. They have been very good in the field. Some difficult and some spectacular catches. And the star player of this team, Valpur Tiger, also walks back 31 for 3. जी हाँ, बिल्कुल एलिवेशन पूरा मिला था, लेकिन वहां पर डिस्टेंस मिला नहीं बल्लेबाज को. लेकिन आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी समझदारी वाली पारी खेलें. यहाँ पर 2 चौके ऑलरेडी आपको मिल चुके थे. आप चाहते कि वहां पर इस पार्टनरशिप को, इस साझेदारी को आगे बढ़ाएं अपने पार्टनर के साथ मिलकर, लेकिन वही हुआ. 2 चौके लगाने के बाद वापस से फिर विकेट गंवाई अपनी वलपोई टाइगर्स ने. ये होता है जब आप उस प्रेशर को फील करते हैं कि भाई यहाँ पर रन थोड़े से कम पड़ गए हैं स्कोर बोर्ड पर, यहाँ से और चाहिए कि हम बाउंड्रीज में डील करें. छोटा फॉर्मेट है, 6 ओवर का फॉर्मेट. अब चाहेंगे कि 60 से 65 रन का लक्ष्य बोर्ड पर जरूर लगा रहे. बतौर बल्लेबाज आपकी ये पूरी कोशिश होती है कि आप चौके और छक्कों में डील करें, लेकिन एक शॉर्टर फॉर्मेट की अगर बात की जाए, चौके और छक्कों के साथ सिंगल्स डबल्स में भी हमने गेम्स जिताते हुए देखे हैं खिलाड़ियों को. मैचेस को निकाला है सिंगल्स और डबल्स के चलते. कल जो पारी प्रीतेश ने खेली थी, सराहना करता हूं उस पारी की. नए बल्लेबाज दिग्गज आए हैं. फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस रही. डायरेक्ट हिट का चांस जरूर था वहां पर. क्लोज कॉल होता, थर्ड अंपायर भी शायद इंटरेस्टेड होते उसमें, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स. 2 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए दिग्गज. And the fielder needed to throw over there because he felt that might be a batter was struggling at the non-striker's end, and the crucial wicket would have been. But finally, it's just going to be a couple of runs. Now both the batters are just discussing in the middle. So far, the score is 33. Although you feel at this run rate, they are going to get around 55-60. But I'm telling you, I think there is a strategy going on here with Nitesh Kamble just waiting for his opportunity. And he knows that 4th and 5th bowling options of most of the sides is pretty weak, or you can say pretty average. And that's why they want to target. Someone should be there on the wicket to target and take advantage. जी हाँ, बिल्कुल इस बार दिशा दिखाई 1 रन के लिए. गहराई मौजूद जरूर है वलपोई टाइगर्स के बैटिंग में, लेकिन उतनी ही गहराई यहाँ पर नवेलिम रॉयल्स के बॉलिंग के कार्ड में भी, क्रम में भी हम देख सकते हैं.
इसी 1 रन के साथ ओवर होता हुआ समाप्त। चौथे ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 34, 3 विकेट के नुकसान पर। 34 for 3 after 4 overs. I think Navelim Royals will be pretty happy having chosen fielding. They will have certainly hoped for wickets of Suraj Gavde, Arshad Matondkar early, and that is exactly what the bowlers have given. In fact, the fielders also have supported the bowlers for a good cause. The first over costed 10, the second just 2 runs, and that is what prompted the captain of Navelim Royals, Sahil Arolkar, to give another over to Anand Patil, having bowled very economically and picking up the crucial wicket of Suraj Gavde. And in spite of bowling the second over, I think he just not considered too many. Just 12 runs considered of that over in power play when you expect the batters to get somewhere around 20 runs. They were quite far back in this game, Walpet Tigers. They are just getting back on track. Now this is a crucial phase for Navelim Royals. So far they have controlled this game very well, but if you talk about the last 2 overs, it just can go out of hands. We've seen some expensive over 25, 30, 35 be taken off from the 4th and 5th bowling options, and that is what many of the batters, many of the teams are going to eye on and try to capitalize on that weak and average bowlers. And that's why importance of Diggaz and Nitesh Kamble will come here at the forefront. Whacked over the top, and that's the start they were hoping for. Diggaz Bene has strive in a Diggaz way. That's the start that was required. 6 of the very first ball. I was talking about taking on the charge against the 4th and 5th bowling option. Yash has come on, but the success has been found by Diggaz. जी हाँ बिल्कुल, बल्ले के बीचों बीच लगी थी गेंद, सीमा रेखा पार भेजा, स्टैंड्स में पहुंचाया उस गेंद को। यही शुरुआत चाहती थी वहां पर वॉलपॉइंट टाइगर्स इस ओवर के लिए, और यही बात कर रहे थे हरीश, जैसे आपको स्टार्ट मिलती है उसी के मोमेंटम को आप कैरी करते हैं उस पूरे ओवर में। यहाँ से देखना है, काफी दिलचस्प होगा कि इस छक्के के बाद इस मोमेंटम को कैसे कैरी करते हैं, या स्ट्राइक रोटेट करते हैं, या फिर बड़े शॉट के लिए जाते हैं। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। The ball has gone. Ball has gone into the bushes and requires another ball. Certainly they have chosen the ball. They are pretty happy. 6 runs have taken the score to 60, in fact 40. And they will be looking to get a few more sixes in this over to try and get up over that 55-60 in this over itself. Diggaz on strike. That's nicely bowled. Walking across, but trying to bowl a Yorker length here. Yash successful. Pretty good line and length. And he has placed 3 men in the deep, 1 in the backward square leg, 1 in the cow corner, 1 at long on, 2 on the offside, 1 for the switch hit for Nitesh. So much of patience, so much of temperament required. Not many of the cricketers have been seen in Goa and many across in tennis ball cricket circles who have a lot of patience. Nitesh certainly has showcased, but now the patience should be out and the heat should come out from inside. It's all about showing the anguish and the anger on the bowlers for the last 10 balls. Yeah, you struck it well, straight in the commentary box, and that is gone. Amazing hit here from Nitesh Kamble, and this is a sign that he's cutting loose. या यही खामोशी थी, उस तूफान से पहले की ये खामोशी थी नीतीश कांबले द्वारा। सबर को पकड़े रखा था, उसको थामे रखा था, सबर की रस्सी को, पेशेंस की रस्सी को पकड़े रखा था। यहाँ पर वो तूफान बोलता हुआ, यहाँ पर वो आंधी आती हुई पहली गेंद पर छक्का लगाया था, फिर इस गेंद पर छक्का ठोका है सीधे कमेंट्री बॉक्स पर।
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आक्रमक लय पर नजर आते हुए यही बल्लेबाजी की अपेक्षा कर रहे थे वलपोई टाइगर्स के कप्तान भी। एक और जोड़ लीजिए उसमें, इस बार और भी बड़ा, इस बार और भी दूर। क्या ही कहने इस बल्लेबाजी के, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। बल्ले के बीचों बीच जैसे ही संपर्क हुआ प्रमाण दे रही थी गेंद की मैं जाऊंगी सीमा रेखा पार। और इसी 6 रन के साथ 50 पूरे होते हुए वलपोई टाइगर्स के 53 पर पहुंचा है कारवान यहाँ वलपोई टाइगर्स का। And Nitesh Kambli is showing that our patience can achieve more than our force. That is what he is doing here, and that is why we say patience and time are the two most important words in the entire life. And if you can respect the time and abide by the patience, you can conquer anything in the world. या बिल्कुल सही कहा आपने। आप संयम रखेंगे, आप काम एंड कंपोज्ड इनिंग्स को आगे बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी आपके कदम चूमेगी जरूर। सही टाइम मौके पर सही प्रहार करना जरूरी होता है। आप ये नहीं कि आप हर गेंद पर चौका और छक्का ठोकें। जब आपके रडार में गेंद हो, जब आपको कॉन्फिडेंस महसूस करें तब लगाइएगा, तो आपको ये निश्चित रूप से दृश्य देखने को मिलेंगे। Yes, and he's showing the strength. He's showing the strength in his arms, and patience also is a virtue and a sign of a great strength, of a great personality. Now it's all about looking for muscular shots, not middling the ball, looking to turn around. Sharp couple of runs taken. Not the best of the throws. And DJ is excited that it's going to be a boundary here. He's not looking at the match. So DJ, kindly be ready. Concentrate on the match. Just a couple of runs. 2 runs added. The score moves on to 55. यही मैं बात कर रहा था हरीश, जब आप छक्के और चौके लगाते हैं फिर उसके साथ सिंगल्स और डबल जब आप रोटेट करते हैं, ये दर्शाता है कि आप कितने सेंसिबल क्रिकेट को पकड़े हैं। वहां पर आप कितना फिटनेस को मेंटेन कर रहे हैं, आप सिंगल्स को डबल में तब्दील कर रहे हैं। That's a sign of a matured batter. That is what he's turning to be. And that's going to be a dot ball to finish. Wanted to go over the top. Pretty good finish in the end. But I think Nitesh Kambli will be happy with so many runs have come from both the batters. Diggaj as well contributing handsomely with the sixes, and Nitesh Kambli later on. So from 34 they have got to 55. That means they have got 21 runs of over number 5, which they were hoping for. 5 overs gone is 55 for the loss of 3 Walpoi Tigers. मानो ऐसा लग रहा था कि शायद से 50 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाएगी वालपॉई टाइगर्स, जिस हिसाब की क्रिकेट शुरुआती 4 ओवर में चली थी। लेकिन इस 5वें ओवर ने पूरी रूपरेखा बदल के रख दी है इस मुकाबले की। 3 छक्के, 3 बड़े बड़े टावरिंग सिक्सेस देखने को मिले इस ओवर में। नितेश कांबली जो कि सलामी बल्लेबाज है अपनी टीम के, अभी तक क्रीज पर मौजूद, दर्शाते हुए कि टेम्परामेंट किस हिसाब से आपको मेंटेन करना चाहिए। शुरुआत में चौके बटोरे थे लेकिन थोड़ा सा संयम दिखाया, बीच में स्ट्राइक रोटेशन की, और जब चाहिए थे कि बड़े छक्कों की जरूरत है उस टाइम पर अपने गेयर को बदला है, उस टाइम पर एक्सप्लोजन दिखाया है यहाँ। Yes, and certainly I was talking about and thinking about a total of 75. They were slow in the first 3 overs. Maybe thinking about somewhere around 30, 35 in the first 3. They were slightly back, but trying to just accelerate and get a spike here. They already got a spike in the last over, getting 21 runs. And if they can get around another 20 here in this over, they will get to a total of 75. With the bowling lineup that they have, they will be fencing their chances to defend it. या बिल्कुल इस बार पीछे लगाने का प्रयास था लेकिन गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन उतना मौका बना नहीं फील्डर के पास कि इसको लपक सकते हैं। लेकिन 1 रन जरूर मिल जाएगा। आखिरी ओवर चलता हुआ एडी चोटी का दमखम लगाते हुए यहाँ पर हरीश, दोनों ही बल्लेबाज। And you can see the wind direction. It is flowing from the east to the west. Now the idea from Nitesh, whether he's going to go for the switch hit, whether he's going to go in the covers, or he's going to back his strength and go on the leg side. जी हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि शायद मिडॉन को टारगेट करेंगे इस बार, क्योंकि जिस हिसाब का आपकी स्ट्रेंथ लग सकती है मिडॉन पर, उतनी आपकी स्ट्रेंथ यहाँ नहीं लग सकती ऑफ स्टंप पर। बाहरी किनारा एक बार फिर से नो मैंस लैंड पर लैंड कर गई गेंद। दूसरे रन के लिए आना चाहते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई है टेनिस बॉल के प्लेयरों ने कुछ अरसे से कि आप रन लेंगे, आप अपने प्लेयर को कहते हैं कि वहीं रुकिए आप, ताकि वो आप रन आउट ना हो, ये थोड़ी सी अतिरिक्त मतलब एक अनोखी सी स्ट्रैटेजी अपनाई है ताकि खुद को स्ट्राइक पर रख सकें।
Yes, and this is also happening in leather ball cricket as well in international format. Sometimes you see number 10, number 11, and if there is a top order batter, he wants to come on strike. It happens on rare occasions in international cricket. I think it has transpired from tennis ball cricket itself. They must have seen some tennis ball cricketers doing it, want to get on strike, and I don't think it is bad here, considering Nitesh Kamble is more expected to get those 60s and 15, 18 runs, and I think he needs to be on strike for Walpur Tigers. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि टेनिस क्रिकेट को देखते हुए लेदर बॉल भी यहाँ पर इवॉल्व होता हुआ, क्योंकि अब वो एक अलग प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। टेनिस क्रिकेट एक अलग सतह पर आ चुका है। एक हर टूर्नामेंट में आप देखेंगे कि कोई ना कोई फील्डर, कोई ना कोई प्लेयर, कोई ना कोई गेंदबाज आके एक अलग मैसेज देता है विश्व को। चाहे आप स्विच हिट की बात करें, चाहे आप वेरिएशंस की बात करें। इस बार हवा से बातें करती हुई गेंद मिड ऑफ 30 गज के दायरे के अंदर, वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर इंटरेस्टेड है, लेकिन जाएगी सीमा रेखा पार गेंद। 6 रन के लिए बड़ा शॉट। इसी 6 रन के लिए उन्होंने वो स्ट्राइक मांगी थी और डिलीवर भी किया सही मौके पर। Absolutely, and he watched it carefully and backed himself down the ground and dispatched it over the long off region. Downtown was wafted. Last and final call to the captain of Kalangur Giants, otherwise he will be penalized. Please take a note. Kalangur Giants captain, please report. 64. Straight over the top, what a shot. He actually whacked it over the top, clobbered it down, and that gets the maximum. What a finish that Nitesh Kamble is giving here. Picking the balls, picking the spots, and picking the sixes. अगर अगर 6 रन मारना एक कला है तो ये कलाकार है उस कला के। इस बार एक और शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर इंटरेस्टेड है। इस बार दे जाएंगे कैच। एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, वो फिनिशिंग टच देने का प्रयास था, वो चेरी ऑन टॉप करने का प्रयास था, लेकिन विकेट गंवा बैठे। अपनी जो डैमेज करना चाहिए था वो डैमेज कर चुके हैं। इसी के साथ पारी को भी समाप्त किए हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 71 रन का लक्ष्य रखा गया है नवेलिम रॉयल्स के आगे, जिसको चेस करने के लिए आएगी दूसरी इनिंग में 36 गेंदों में। Yes, and I think a pretty good recovery in the end, but they will be feeling that they were hoped for somewhere around 80 runs. They might be feeling 10 runs short, but having seen the bowlers of Walpur Tigers, they will definitely be upbeat to defend the 70 runs. 70 is not small by any stretch of imagination. Finally, it's been posted on the board, and it's the team of Said Arulkar and Siddesh Bhagat, Navelim Royals. They have to come, the batters, and chase it down. We are hoping for a thrilling contest here, although it looks a little bit interesting, this runs that has been posted 70, and we'll see the run chase. Now I'm going to take the toss here for the next game between Kalangur Giants and Bicholim Blasters. Heading for the toss straight away.
टीम और जज्बा हर मैच जीतने का, तो आज ही रजिस्टर कीजिए www.10pl.net पर। गली से स्टेडियम तक 10 प्रीमियर लीग। So first we will take a group photograph. Thank you so much. I was there last year, will be there this time, I will be there even after that. So join me watching the world's biggest tennis ball cricket tournament, 10 p.m. Rambam Challengers Battle again. DPL. एक ही बल्ले और गेंद की लड़ाई सिर्फ यहाँ 10pl में। At 10 p.m. enjoyment is 3 times normal. Great. And how is the preparation after the auction till today? चड बरें आहा चड बरो ऑर्गनायज केला टुर्नामेंट सो आनी एक बरो ऑपॉर्च्युनिटी आहा आमकां लोकल प्लेयरांक खेळपाक सो बरो प्लॅटफॉर्म आहा. Great. Bicholi Blasters, you will do blasting. इलाका तुम्हारा धमाका हमारा. How is the blast going to be? कितना बड़ा blast होगा? And do you feel that because of breezy and windy conditions, today is a run day? आज हवा चल रही है तो ऐसा लगता है रन डे है. चलो 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 लेकिन एक चीज याद रखिए, दामबाद प्रीमियर लीग में एवरी डे इज अ रन डे बिकॉज टीम्स हैव जीत के फंडे. लेट्स गो टू कमेंट्री बॉक्स where Shekhar Bhai Pillai and Ashok Naik, the golden pair of commentary resembling Lakshmikant Pyarla on air with you. Thank you. रन चेज ऑन है, स्विमिंग पूल एंड से गेंद लेकर आए हैं. जी हाँ 10pl आ रहा है. अगर आपके पास है टीम और जज्बा हर मैच जीतने का, तो आज ही रजिस्टर कीजिए www.10pl.net गेंदबाजी मार ली. गली से स्टेडियम तक जानते हैं कि प्रीमियर लीग बड़ा स्कोर चेस करने जा रही है. 70 रन तो पावर प्ले का जो ओवर है उसमें धमाकेदार शुरुआत करनी होगी. जब आप कोई बड़ा स्कोर चेस करते हैं तो दो बातें आपको आपके जहन में रहता है. विकेट भी पड़ता है और दूसरी बाउंड्रीज भी हासिल करना होता है. यही दबाव होता है चेस करने वक्त. एक अच्छे गेंदबाज पर एक कड़ा प्रहार कर बल्लेबाज ने 4 रन बटोर लिए. एक ही बल्ले और गेंद की लड़ाई सिर्फ यहाँ 10pl में. At 10 p.m. enjoyment is 3 times. पहला ताकत और अब नजाकत, पहला चौका और अब सिंगल, यानी कि रनों का आना सिलसिला जारी है. टॉस जीता था नावेलिन टीम ने, उन्होंने फील्डिंग का निर्णय किया था. उनकी तरफ से 2 ओवर किए आनंद ने, जिसमें मात्र 14 रन खर्च किए और अपने नाम 2 विकेट कर लिए. नितेश कामली है जिन्होंने वालपई की तरफ से 43 रन बनाए सिर्फ 20 गेंदें खेलकर, 4 छक्के और 2 चौके की मदद से. स्क्वायर कट कर दिया है गेंद को. जब तक गेंद को रोकते फील्डर तब तक बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन बटोर लिए. कल के दिन हमने देखा था शुरुआती दिन में 50-60 रन बन रहे थे 6 ओवर में, लेकिन आज का दिन सब एक मैच 70 के पार, यानी कि पता चल गया है कि बल्लेबाजों को ये पिच क्या चाहती है. पिच चाहती है अच्छा खेलो और मेरे से रन बटोर लो. बल्लेबाजों का पैराडाइज है फिलहाल ये मैदान. उछाल कर खेलना चाहते थे आप और गेंद भी, लेकिन ये जो गेंदबाज है 45 जर्सी पहनकर जो गेंदबाजी कर रहा है हर्षद, एक जबरदस्त गेंदबाज है. थैंक यू वेरी मच. तो सध्या हांगा वालपय टायगर्स कॅम्पा भितर आसा आनी वालपय टायगर्स ओनर विराज बापी आसा आमचे मदीं आसा. विराज, पयली मॅच तुजी आनी पयली इम्पॉर्टंट मॅच, तुका कितें दिसता स्कोर बरो जालो आनी 15 रन चड जावपाक जाय आशिल्ले?
जी हाँ, NPL आ रहा है। अगर आपके पास है टीम और जज्बा हर मैच जीतने का, तो आज ही रजिस्टर कीजिए www.npl.net पर। गली से स्टेडियम तक करेक्ट 10 प्रीमियर लीग काढपाक जाय आनी नितेश कांबळे बरो खेळ्ळो कारण एकट्यान कोणी तरी लास्ट पर्यंत खेळून थंय 70 रनाकडे पावपाक जाय आशिल्ले 42 रन्स जबरदस्त पारी आणि तुजी जर तर ओवरऑल टीम पळयली जाल्यार बॉलिंगाची स्ट्रेंथ बी I was there last year, will be there this time, and will be there even after that. So join me watching the world's biggest tennis ball cricket tournament, 10 p.m. That's the ball. We'll battle again. ताजो तो फायदो तुमकां आणि तशेंच दिसाचे जिखप इम्पॉर्टंट कारण रातची जर पळयलें जाल्यार स्कोरींग मातशें कमी जाता कित्याक लायटीन भितर दव येता तर इम्पॉर्टंट दिसाक जर तर मॅची मेळ्यो तो जिखप इम्पॉर्टंट जाता डेफिनेटली म्हणजे आमचे कडेन जे प्लेयर आसात जे नायट आतां तुमी मांद्रे म्हणात सूरज गावडे हर्षद मातोंडकर नितेश कांबळे आणखी प्लेयर आसात जेणी पयर फ्लडलायटीकूय बी बरो परफॉर्मन्स दाखोवन म्हणजे 90चे पार आणि जसो वाळपय टायगर्स आणि राजाक वळखता ताजे फॅन फॉलोवींग आणि ताजे जे पळय फ्रेंड सर्कल आसा ते गोंयांत खूप मोठे आसा तर वाळपय टायगर्सा खातीर आमी हांगा भरपूर सपोर्ट सांजचो बी पळयताले कित्याक मातशें वत आसा आय कॅन अंडरस्टँड गोंयकार मातशे आमगेले वताक चड भायर सरनात तर सांजचे पळोवपाक मेळटा कारण बच्चा पार्टी ताका बच्चा पार्टीक मातशें कवर कर आमगेल्या ते भरपूर बच्चा पार्टी आयल्या फ्युचर क्रिकेटर्स आमचे ते हांगा दिश्टी पडटा आनी कितें म्हणटा तूं तुज्या सपोर्ट रिपोर्ट आणि येस व्हेरी गुड ऑर्गनायझेशन आणि नाव म्हाका आवडलें कारण वाळपय टायगर्स तेन्ना म्हणटा तांचो ओनरूच स्वता एक गब्बर शेर आसा सो विश यू गुड लक विराज देसाय मारना चाहते थे मेन विकेट पर अंदरूनी हिस्सा गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग छोड़ जब तक थ्रो आता बल्लेबाजों ने 1 रन को तोड़ लिया स्कोर धीरे-धीरे जा पहुंचा है। अगर आपके पास है टीम और जज्बा पहले ओवर की समाप्ति पर 1 चौके लगे थे तो आज ही रजिस्टर कीजिए जिस ओवर में 9 रन आए उस ओवर को खत्म किया www.npl.net पर कप्तान ने गली से स्टेडियम रन का 10 प्रीमियर क्या है पावर प्ले के ओवर में 9 रन यानी सूझबूझ की बल्लेबाजी चल रही है किसी ने पूछा कि आपने 70 बनाया कि ये 70 इनाफ है तो उसने कहा नहीं 80 I was there last year, will be there this time, and will be there even after that. So join me watching the world's biggest tennis ball cricket tournament, 10 p.m. अगर आपके पास ऐश्वर्या है तो आप चाहेंगे दीपिका पादुकोण यानी ये दिल मांगे मोर देखिए बल्ले और गेंद की लड़ाई बेहतरीन गेंदबाजी एक्सपीरियंस का भरपूर इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज ऑफसाइड के चैनल में बल्लेबाज को परेशानी कर गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग की सजावट खूबसूरत लगा रखी है कप्तान ने लावली बॉलिंग लेकिन इस बार हल्की सी दिशाहीन हो गई ये जो छोर गेंद पड़ा है मैं सभी गेंदबाज से गुजारिश करूंगा यही वो छोर है जहां पर आप बड़े बड़े दिग्गजों को पकड़ सकते हैं ट्राई टू बॉल यही वो दिशा है जहां पर बड़े बड़े बल्लेबाज चकमा खा जाते हैं अल्टी पल्टी का प्रयोग करने निकल जाते हैं यहां से आप विकेट हासिल कर सकते हैं यहां पर बल्लेबाज अपना बल्ला फेंक देंगे अगली गेंद इस बार पटका हुआ गेंद चकमा दे दिया बल्लेबाज को कुछ पता नहीं चला सूझबूझ की गेंदबाजी हो रही है सुंदर एक लफ्ज कहूंगा लाओली डिलीवरी चुम्मेश्वरी गेंदबाजी टूर्नामेंट की बात ही कुछ निराली है मजा आ रहा है कमेंट्री करने में और खिलाड़ियों को भी मजा आ रहा है खेलने में गेंदबाज लगे हैं गेंदबाज को पूछिएगा कि आपके सामने बल्लेबाज है या मात्र विकेट कीपर है मैं तो कहूंगा कि बल्लेबाज उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है दौड़ के आ रहे हैं और गेंद दूसरे कीपर के हाथ में दे रहे हैं यही कुछ चल रहा है मैदान पर स्कोर वहीं पर रुका हुआ
12। जी हाँ, NPL आ रहा है। अगर आपके पास है टीम और जज्बा फील्डिंग को हर मैच जीतने का, क्रिकेट के तो आज ही रजिस्टर कीजिए अगर गेंद यहाँ पर मिस भी होती है तो पैर को लगकर बॉडी को लगकर वहीं पर रुकनी चाहिए। प्रीमियर लीग सब बेसिक्स आपको नेट्स में सिखाए जाते हैं। तो 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर बने हैं 13, यानी कि इस ओवर में खर्च किए कंजूस गेंदबाज ने सिर्फ 4 रन। I was there last year, will be there this time, and will be there even after that. The world's biggest tennis ball cricket tournament, 10th मैं year. कहता हूं कि बड़े बड़े खिलाड़ी कैसे बनते हैं। आप एक अच्छे खिलाड़ी कभी बनेंगे, आपको अच्छा क्रिकेट खेलना ही खेलना है। और दूसरी बात यह है, आपको अपोजिशन की कमजोरी की जो नर्व्स होती है ना, उसे दबाना है। देखो, महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का भी विकेट कई बार ऑस्ट्रेलियन कहो या साउथ अफ्रीकन कहो, एक चैनल पर खिलाड़ी को फील्ड कराकर विकेट हासिल किया है उन्होंने। आप अगर 40 वर्ष के खिलाड़ी है तो आप अगर सोच रहे कि इनाफ क्रिकेट मेरे में है, नहीं। मैं कहूंगा 100 में से सिर्फ 5% क्रिकेट अब तक आपने सीखा है और खेला है। सचिन सर से भी पूछिएगा, अभी भी कहते हैं स्टिल मी, यानी मैं स्टूडेंट हूं क्रिकेट का, अभी भी मैं सीख रहा हूं। 50% भी क्रिकेट मैंने नहीं खेला और सीखा नहीं। यानी कि आप जितने क्रिकेट सीखते जाओगे, नए नए स्ट्रोक्स आप में आती जाएगी। कभी भी आपको क्रिकेट का स्टूडेंट समझना चाहिए, ना कि प्रोफेसर। इस बीच तीसरी ओवर की तैयारियां हो चुकी है। इस बार कप्तान ने भरोसा जताया है। गेंदबाज सिद्धेश गणु, हेलीकॉप्टर के रूप में खेला हुआ स्ट्रोक का कवर जा रही है गेंद, बेहतरीन फील्डिंग। पहला रन तेजी से लिया, फंबल देखकर 2 रन का कॉल और 2 रन पूरे कर लिए। रनिंग बिटवीन द विकेट जोरदार है। आप युवा है, फ्रेश लेग है, मौका को खोएगा ना। स्कोर तेजी से जा पहुंचा 15। रिमेंबर, यू आर चेजिंग 70 रन्स। हर एक गेंद पर रन बटोरना होगा आपको। इस बीच हाथ खोलकर खेल दिया है, गेंद हवा में खड़ी हो गई है और वहां पर फील्डर ने आसान से गेंद को लपक लिया। छोटी गेंद थी, पुल किया था, लेकिन शुरू से शिखर सर संघर्ष कर रहे थे। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज पिछला एक अच्छा शॉट लगाया था ऑफ साइड पर, लेकिन इससे पहले ओवर में सहयोग कांदोलकर ने लगातार उनको परेशान किया था बल्लेबाजी में। वही वो अस्त्र है। पिछले ओवर में जो अस्त्र छोड़ा था जो दूसरे ओवर के गेंदबाज ने, वो अस्त्र अब जाके चुभा है बल्लेबाज को। यानी दबाव बनाया था सेकेंड ओवर जिस गेंदबाज ने किया था, अब उसका फल मिला है तीसरे ओवर के गेंदबाज को। हर्षद की बात ही कुछ निराली है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। गेंद से कहो, बल्ले से कहो, फील्डिंग में कहो, एक फुर्तीले खिलाड़ी है हर्षद। मैदान में उन्हें देखने मुझे बहुत पसंद आता है। कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं गोवा के सरजमीन पर, जब भी मैं उन्हें मैदान में देखता हूं तो मैं भी फुर्ती में आ जाता हूं। उनमें से एक है रुपेश, हर्षद को भी कहो आप, सूर्या, लल्ला यादव, ये सभी फुर्तीले खिलाड़ी है। अगली गेंद नए बल्लेबाज है गोसावी, एक बड़ा नाम है। सर मेरे ख्याल से आते आते बच गए, लगभग करीबी मामला था, बाहरी किनारा लगा था, विकेट कीपर के लिए मौका निकला था ये कैच का। एक बड़ा विकेट मिल सकता था मैच में वापसी के लिए। राजेश गोसावी, गोबरो टीम का गोबरो है, बड़ी मच्छी। जयंत वहां पर थे, ऑफसाइड के काफी बाहर। एम्पायर ने देख परख कर कहा अतिरिक्त रन है, वाइड के रूप में शाहरुख खान की तरफ बाहें फैला दी। 1 रन मिला, स्कोर जा पहुंचा 16। हमारे जयंत भाई मुन्ना हूबहू मुझे रणतुंगा की तरह दिखाई दे रहे हैं। बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग, लवली बॉलिंग, चुम्मेश्वरी डिलीवरी।
हुकुम का इक्का जिसे कहते हैं कार्ड्स में, और क्रिकेट में जो छोर इस बार गेंद की है, लेंथ और लाइन, यही वो छोर है। मैं अक्सर कहता हूं बल्लेबाजों को अगर पकड़ना है, दबाना है, इस छोर पर आक्रमण करो। इस बार ऑफसाइड में काफी बाहर है, एम्पायरों की भी तारीफ करनी होगी। आप देख सकते हैं मैदान कितना बड़ा है, कड़ी धूप है। हम कमेंटेटर एक मैच करके थक जाते हैं, स्कोरर भी थके हैं, लेकिन एम्पायरों की तारीफ करनी होगी, सूत्रधारों की। बिल्कुल, कड़ी धूप होती है और ऐसे धूप में पूरे दिन में खड़ा रहना बात आसान नहीं दोस्तों। हम बिल्कुल बैठकर आराम के साथ कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन वो सभी मैदान पर धूप में खड़े रहकर काम कर रहे हैं। वेल डन। इस बीच खेल दिया है गेंद को कवर क्षेत्र में, और वहां पर पकड़े गए, जाल में फंस गए गोबरो मच्छी। फील्डर थे वहां पर विक्रम, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। जो लाइन और लेंथ थी वहां पर लगातार गेंद डालते गए। आखिरकार राजेश के गेंद को एक बल्ले ने छुआ और गेंद हवा में उछली। बाकी का पूरा काम वहां पर विक्रम ने कर दिया। थैंक यू। Yes, good afternoon everyone. Right now I'm in the dugout of Navelim Royals. Little bit tensed out here. I can understand they've lost a few wickets and also a target is 70. Still looks far away. With me is one of the finest all-rounders of Goa who has done a very good job in the bowling department, picking up the important wicket as well as bowling 2 good overs. Anand, सध्या सिच्युएशन मातशें तुमच्या खातीर मातशें टफ आसा. हय, सिच्युएशन आमच्या खातीर टफ आसा, पूण आनीक 3 ओव्हरीन साहिल आरोलकर आणि आसिफ जर उरलो जाल्यार आमी हो टार्गेट चेस करूंक पावतले. डेफिनेटली साहिल आरोलकर एक एक्सप्लोसिव्ह बॅटर आणि ह्यो वेगवेगळे शॉटी मारपाच्यो कारनामे साहिल आरोलकरान खूब फाटी प्लेयर ऑफ द मॅच, प्लेयर ऑफ द सिरीज अशें जिखिल्ले आसा मोठे आणि ताचेर एक कॅप्टनाचेर म्हाका दिसता स्किपर्स नॉक खेळपाचो पयल्याच मॅचीर ताचेर मातसो प्रेशर आसा, पूण प्रेशर हँडल करपाक साहिल वेल केपेबल. हय, तो प्रेशर हँडल करू शकता, पूण आतां ताका फाटले 2 ओव्हरी ताका स्ट्रायकूच मेळना, एकूच बॉल खेळ्ळा तो 12 बॉलान. सो ताका लागून ताकाय मातशें आतां तेजेरूय प्रेशर आसा, तो ते प्रेशर इजिली हँडल करतलो. आणि मागीर फिनिशर्स जर पळयले जाल्यार तूं एक आसा आनी कोण बॅटर्स जे तुमी एक्सपेक्ट करता की फिनिशर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट लास्ट 3 ओव्हर्स. जशे पयले 3 ओव्हरीन तांचे स्कोर आशिल्लो 22, तुमचो जवळपास लागींच आसा, पयस ना. तांणी लास्ट 3 ओव्हरीन स्कोर केल्लो आसा आणि सदांच चवथी आणि 5th बॉलिंग ऑप्शन आसा ते सगळ्यांचे स्ट्रॉंग आसता अशें ना. सो तो एक तुमकां होप आसा. आणि कोण फिनिशर्स तुमच्या टिमीन आसा? आमच्या टिमीन सर्वेशू आसा, हांव आसा, सरवण्णा आसा, तशें सगळेच बॅटिंग करू शकता गरज पडल्यार. सो म्हाका दिसता हे दोगूच जाण मॅच सोंपतले अशें दिसता. ह्या पार्टनरशिपाचेर खूब दारोमदार आसा. व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड क्रुशियल पार्टनरशिप. स्किपर इन द मिडल and skipper can take the charge is the hope of entire Navelim Royals camp, and also the owner who is sitting in the VIP dugout is also tensed. But cricket it is. We have seen great turnarounds in the game of cricket in the span of 1 over, and they are hoping for something like that to happen now. Over to commentary box. तो इस बीच 3 ओवर का खेल हो चुका है, धीमा चेस जारी है, कछुए की तरह रनों का पीछा जारी है. 3 ओवर 18 रन. रिमेंबर यू आर चेजिंग 70 रन्स, यानी कि अभी जीत ले चाहिए, और 52 18 गेंदों में. ऑफसाइड के काफी बाहर, अतिरिक्त रन, अतिरिक्त खर्च न करे. इस बीच बोनस के रूप में एक रन आया है, स्कोर जा पहुंचा 19. स्ट्राइक पर है युवा खिलाड़ी आसिफ जमादार, इन दिनों में काफी फॉर्म में है. वास्को के रहने वाले, काफी लोगों का दिल जीता है अपने जोहर से. अब मौका है हीरोपंती खेल दिखाने का. कट कर दिया गेंद को, जब तक पॉइंट के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते थ्रो करते बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरे कर लिए. स्कोर जा पहुंचा 20 पर. अच्छी शुरुआत बड़े शॉट के लिए नहीं निकले, आते आते पहली गेंद पर एक सिंगल बनाया, और यही करना पड़ेगा क्योंकि विकेट बहुत जल्द खो चुके हैं, रन रेट बढ़ चुका है. सामने गेंदबाजी और उसी के साथ फील्डिंग अच्छी रही है, और बहुत कुछ दारोमदार है इस जोड़ी पर. और नितेश अपने बॉलिंग मार्ग पर. ओहो, फुल टॉस उड़ाया इस बार,
और गेंद निकली सी मारिका पर, मिड विकेट से मारिका से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। मौका दिया, मौके पर बड़ा शॉट लगाया साहिल ने, सामना कर रहे आने वाली अगली गेंद का। इस बार थोड़ा सा दूर से खेला, ऑन द राइट लॉन्ग ऑन पर, वाडिश लॉन्ग ऑन पर, फील्डर एक सिंगल, दूसरे के लिए थोड़ा सा पलटे जरूर थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग, तेजी के साथ गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा। टोटल 27 पर पहुंचा, 2 विकेट पर। थोड़ी सी मंजिल शिखर सर दूर जरूर है, लेकिन ये 2 बल्लेबाज है मैदान पर। देखो 43 रन की जरूरत है, कम से कम 4 से 5 लंबे शॉट तो लगने ही होंगे, इक्के दुक्के से नहीं चल सकता। और ये मौका बना विकेट कीपर के लिए, एक आसान सा एक मिस टाइम शॉट, और सूरज गावड़े उर्फ बाबू विकेट कीपर टीम के, सफलता मिलते हुए टीम को। नितेश कांबळे एक विकेट चटकाते हुए अपने टीम के लिए। सर जी, जिक्र तो हमने इनाम का भी किया और इंडिविजुअल प्राइजेस का भी किया, ऑर्गेनाइजरों का भी किया। वो खास बात जिसके लिए ये टूर्नामेंट पूरे गोवा में चर्चित हुई है, वो ट्रॉफी के बारे में अभी तक आपने जिक्र नहीं किया। लेग साइड के हल्की सी बाहर, एम्पायर ने कहा यहां पर अगर आप बॉलिंग करोगे तो मैं एक्शन में आ जाऊंगा। इस बार उन्होंने वाइड का इशारा दिखाया। बिल्कुल सर जी, जो कि शानदार कल शाम के दौर में, रात के दौर में ट्रॉफी देखी थी, और उस ट्रॉफी के बाद भी हम जरूर चर्चा करेंगे। और नितेश कांबळे एक विकेट मिला, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा लाइन पर भटके। लेग स्टंप से बाहर नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। आनंद पाटिल, बड़ा शॉट, ओवर पिच गेंद, गेंद हवा में, वाइड लॉन्ग ऑन पर, फील्डर, मौका मिला कैच का, थोड़ी ताकत कम पड़ गई, और इस ओवर में और एक सफलता हासिल करते हुए गेंदबाज नितेश कांबळे। मिडल नहीं हुई मेरे ख्याल से, जो आवाज आया वो ध्वनि 6 रन के लिए पूरा नहीं होता। मिडल ऑफ द बैट नहीं लगा, अदरवाइज पिक अच्छा किया था, चूज भी जो छोर था हवा का छोर था, लेकिन गेंद बैट के मिडल नहीं लगने की वजह से सीधे फील्डर के हाथ में गई, और एक विकेट का पतन। और फिर से ड्राइवर सीट पे आ गए फील्डिंग साइड। वो जो ट्रॉफी है ना इस टूर्नामेंट का, उसकी बात ही कुछ निराली है। पहली बार देखने में आया और सुनने में आया है कि पूरे हैंडमेड है वो ट्रॉफी, हैंडमेड, हैंड ग्राफ्टेड। नजदीक से देखनी होगी कि ऐसा क्या चमत्कार है उस ट्रॉफी में। गर्व की बात होगी जो टीम और ट्रॉफी अपने घर ले जाएगी, उसी के लिए ये जंग जारी है। सफल गेंदबाज ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार। आते ही इतना आसान नहीं होता कि आप लंबा शॉट खेले। बल्ले को चकमा दिया डॉट गेंद के साथ। 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 28, यानी कि और 42 रन की जरूरत। क्या लगता है अशोक सर जी? 12 गेंदे 42 रन। सर जी थोड़ा सा रन रेट जरूर बढ़ चुका है, 12 गेंदों में 42 रन। पिछले ओवर में मैच में बहुत अच्छा कमबैक किया नितेश कांबळे ने। 2 सफलता मिले, और जब तक कि गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी की शुरुआत हमारे थोड़ा सा जो कि सुमधुर संग। हेलो, 2 ओवर का खेल बाकी है, बैटिंग पावर प्ले का इशारा
और ये ओवर बहुत मायने रखेगा। इस ओवर में मैच में वापसी करनी है तो 20-22 रन बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो आखिरी ओवर में थोड़ा सा और रन रेट बढ़ जाएगा और काफी मुश्किलें पेश होगी आपके सामने। देखो वालपाई टीम की तरफ से नितेश कांबली जो है उनका दिन बेहतरीन घटा। 20 गेंदों में जब बल्लेबाजी कर रहे थे 43 रन, और अब जब ओवर के लिए आए तो 2 विकेट। अगर ये मैच वो जीतती है टीम तो कभी कभार ऐसे होता है कि जारी वक्त भी आप मैन ऑफ द मैच का घोषित कर सकते हैं। निश्चित रूप से अगर ये मैच जीतती है वालपाई टीम तो नितेश वो गाय रहेंगे जो ट्रॉफी इस मैच के ले जाएंगे। सामने गेंदबाजी में परिवर्तन, दूर वाले छोर से स्विमिंग पूल की ओर से प्रवीण सावंत आ चुके हैं गेंदबाजी कर रहे, बहुत अच्छे गेंदबाज है। अरे सामने बल्लेबाजों को बिल्कुल जो कहीं ना कहीं अब मात्र जोखिम लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी बड़े शॉट के और बढ़ना पड़ेगा, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे इस ओवर में, आने वाले ओवर में। मैं तो कहूंगा फिलहाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को भूल जाओ, फिलहाल रुपेश को याद करो। रुपेश, उन्होंने जो 72 रन की पारी खेली, ऐसी पारी खेलो रुपेश की तरह, रन आ जाएंगे। 12 गेंदे 42 रन, बहुत बार हमने देखे हैं ये फासला बनते हुए। लावली डिलीवरी, सुंदर जगह गेंद कराई, बल्लेबाज को मजबूर किया 51 रन बनाने में। मैं तो कहूंगा और 41 रन है, एक के दुक्के से कुछ नहीं होगा। सर जी अगर 41 रन, क्या आप कहेंगे ये 5 गेंदों में बल्लेबाजी कैसी होनी चाहिए? कम से कम 3 आपको बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे आने वाले 5 गेंदों पर। अच्छा शॉट कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है मौजूद। ओहो, फील्डर को बीट करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए। थोड़ा सा कभी कभी विकेट पर अनियमित बाउंस होता है और आउटफील्ड पर बाउंस होता है, और वहीं पर थोड़ा सा फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर धोखा खा गए और गेंद सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन को पार कर गई। आप देख सकते हैं फील्डर की तरफ पोजीशन भी अच्छी बनाई थी, पहुंच भी गए थे, लंबे भी है, सब कुछ था इस गेंद को रोकने में उनके पास, लेकिन वो अनियन बाउंस वो काम आ गया और गेंद निकल गई 4 रन के लिए। अब जरूरत है 37 रन की, 10 गेंदे 37। कैच नो ड्रॉप, पूरा प्रयास, 100% कमिटमेंट, जोरदार प्रयास, लग गया था कि पकड़ लिया उन्होंने दूसरी बार के अटेम्प्ट में, लेकिन जब मैदान पे गिरे ना तब गेंद छिटक गई हाथ से। लेकिन सूरज गावड़े और भाऊ जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, बहुत अच्छे लेदर क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट, लेकिन शेखर सर मैं एक बात जरूर कहूंगा, आउटफील्ड भी बहुत अच्छा है, ओरिजिनल ग्रास है, ऐसे मैदान पर आपको ये फील्डिंग बिल्कुल बहुत सराहना करनी पड़ेगी। यानी कि आप चाहते हैं कि ऐसे खिलाड़ी से गलती ना हो, इनसे गलती की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी, अच्छे बेहतरीन जो कि फील्डर है, बल्लेबाज है, विकेट कीपर है, लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा आसान मौका था, कोशिश बहुत अच्छी थी, बहुत जो कि 100% एफर्ट लगाया था प्रवीण सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर। ये बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच स्क्वायर लेग बाउंड्री पर हवाई फायर और गेंद चली गई इसी मार्का से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। देखो तेजधार गेंद, शॉर्ट गेंद भी नहीं थी और ब्लॉक होल भी नहीं थी, ऐसे दिशा में पड़ी जहां पर बल्लेबाज को मौका मिल गया। इस बार हल्की सी गेंद आगे आने की वजह से ऊंचा खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं, हीरो अरशद वहां पर मौजूद। एक शॉट पारी खेलकर बल्लेबाज ने अपना विकेट गंवाया, अभी भी रनों की जरूरत है, पूरे 30 रन की जरूरत है। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। हमारे हरीश सर बैठे जो कि और उन्हीं के साथ चर्चा होगी विराज देसाई की इस मैच के साथ, और इसी बीच नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, सबके अन्ना सरवन्ना। ऐसा नहीं कि 6 गेंदों में शेखर सर, कभी कभी 6 गेंदों में 6 रन नहीं बनते हैं,
लेकिन 25-30 रन भी बने 6 गेंदों में। ये क्रिकेट है, क्रिकेट का हिस्सा है, देखा जाएगा फिलहाल क्या होता है इस ओवर में। 6 गेंदे 30 रन, यानी कि बल्लेबाज को आक्रमण होना पड़ेगा, शांत नहीं खेल सकते, हाथ खोलना ही पड़ेगा। 6 गेंद 30 रन, पहला स्ट्रोक पार हो गया। चलो गेंद, पहले गेंद पर बल्लेबाज हावी हो गए गेंदबाज पर। बहुत बेहतरीन शॉट, थोड़ी सी स्लॉट में और सामने वाले प्लॉट में बिल्कुल गेंद को भेजा। और अशोक सर जी, गेंद भी उतनी खराब नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज कुछ ज्यादा ही अच्छे निकल गए वहां पर। अब 5 गेंद 24 रन। ऑफसाइड के काफी बाहर है। एम्पायर ने कहा इट इज ए डॉट बॉल, यानी कि बल्लेबाज हल्का सा सफल हो गए थे। तो एम्पायर का जो नजरिया होता है ना, वो और ही कुछ होता है। आपको लगता है कि ये गेंद काफी बाहर है, लेकिन एम्पायर का जो नजरिया है ना, वो और ही कुछ है। बिल्कुल, आप कहां पर आ चुके हैं जो कि स्टंप छोड़कर सही बात है। इस बार काफी बाहर, फिर से एक बार वाइड के रूप में एक रन निकला है। 4 गेंद 23 रन, एक डॉट गेंद, आपको पता चल जाएगी कि कौन सी टीम ये मैच जीतने जा रही है। और एक छक्का, फिर से एक बार जल्लोश निकलेगा बल्लेबाजी के पवेलियन में। चलो, यहां से कोई अतिरिक्त डिलीवरी नहीं गिरती तो फील्डिंग साइड जीत रही है मैच। बिल्कुल, इस बार गेंदबाज ने थोड़ी सी गति को कम किया, स्लोवर वन किया। शायद ये सोचोगे कि कहीं एक बार फिर से वाइड बॉल ना हो जाए। चले सीधी गेंद की और बल्लेबाज को जो कि बीट किया डॉट गेंद के साथ। व्हाट इज जायंट शॉट, इस पर 12 रन दे दो भाई। 12 रन होते हैं क्या क्रिकेट में? नहीं 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 नहीं, ज्यादा ही लंबा चला गया कुछ। ये बल्लेबाज की अच्छी सोच है, उनकी पहली मैच है, जितने भी रन चाहे बटोर लो। रन रेट पिक्चर में आता है टूर्नामेंट में, कल के दिन हमने ये देखा था। बिल्कुल, अगर टाई मुकाबला हो जाता है तो 1-1 पॉइंट, और वहीं पर एक रन रेट, एक लोअर फुल टॉस ऑन साइड पर खेला, लॉन्ग ऑन पर फील्डर और सिंगल के साथ। लेकिन सर जी बिल्कुल, जीत तो जीत होती है, जीत आपको जो कि उत्साह बढ़ा देगी, स्फूर्ति देगी अगले मैच के लिए। बिल्कुल, और टाई मैच के साथ शायद दबाव होगा अगले मैच के ऊपर। ऐसा है क्रिकेट में, बड़े खिलाड़ी बनने का मंत्र तंत्र सब जीत पर है। आप जीत जैसे जैसे जीतते हो, खिलाड़ी में जल्लोश आते रहता है, वो एक बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। डॉट गेंद के साथ ओवर, ये डॉट गेंद के साथ वाजपेयी टाइगर्स ने ये पहला मैच जीत लिया है। और उनके हीरो है इस मैच के नीतीश कांबली। बल्लेबाजी में 43 रन मात्र 20 गेंदों में, और गेंदबाजी में 2 विकेट, और खर्च किए हैं 10 रन, 2 विकेट। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। आने वाला मैच हो रहा है, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना पसंद किया है कलंगुट जायंट्स क्रिकेट टीम ने, और बिचोलिम ब्लास्टर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करेगी। अगला मैच कलंगुट जायंट्स टॉस जीतकर फील्डिंग और बिचोलिम ब्लास्टर्स बल्लेबाजी करेगी। और तब तक हमारे सुनते हैं डीजे। सर जी, कल से मैं देख रहा हूं जो भी टीमें टॉस जीत रहे हो,
फील्डिंग कर रहे हैं, क्या खास बात है इसमें, आपको क्या लगता है? शायद विकेट अच्छा है, आउटफील्ड है, और जो स्कोर होता है ना, अगर 6 ओवर में 72 रन बने तो बिल्कुल 12 रन के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। जो रन रेट है वो कैलकुलेशन पिक्चर में आता है। कैलकुलेशन या यानी कि आपको एक अंदाजा लगता है कि कौन से गियर में क्रिकेट खेलनी है, पावर प्ले में क्या करना है पहले, पावर प्ले में, और कब पावर प्ले दूसरा लेना चाहिए। हाँ, वो सब पिक्चर में आने की वजह से एक चेस करने के लिए थोड़ी सी आसानी होती है। तो यही इसी के खातिर सभी कप्तान जो भी कप्तान टॉस जीत रहे हो पहले फील्डिंग का निर्णय कर रहे हैं। और जितने भी 12 कल के दिन 12 मैचेस हुए थे, आज के दिन ये चौथा मैच जारी है, तो मैक्सिमम मैचेस सेकेंड बैटिंग टीम ने ही जीता है। तो कलंगुट जायंट्स टॉस जीतकर फील्डिंग और बिचोलिम ब्लास्टर बल्लेबाजी कर रही है। This time, I will be there even after that. So join me, what is the world's biggest tennis ball cricket